Hello everyone, welcome back to the channel. माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में मैंने सप्लाई कर्व से रिलेटेड कि क्यों सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है हमने वो देखा था। इस वीडियो में हम लोग मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व देखेंगे कि कब मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व में और कब देयर इज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। A supply curve shows relationship between price of the good and quantity of it supplied. ये हमें पता है, रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइजेस, जब प्राइस इंक्रीज होता है तब अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई रिमेनिंग द सेम, यानी ceteris paribus assumption, more quantity will be supplied. So quantity supplied increases. On the other hand, when price of the good falls, other factors remaining unchanged, less quantity of it will be supplied by the producer in the market. Therefore, supply curve of the commodity slopes upward to the right, क्योंकि direct relationship है. Changes in the price of the commodity brings about movement along the supply curve. अगर प्राइस में कुछ चेंज आ रहा है तो उस वजह से देयर विल बी मूवमेंट अलोंग द कर्व, यानी अगर ओरिजिनल प्राइस इतना है, प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज होगा, यू आर मूविंग अलोंग द कर्व ओनली, the supply curve remaining constant. This is depicted by figure 5.14 where the upward sloping supply curve SS of the commodity has been drawn. तो ये SS जो line है, this is the supply curve. When price of the commodity is OP1, the OQ1 quantity is supplied, and when the price rises to OP2, the greater quantity OQ2 is supplied in the market. Price increase हुआ, quantity increase हो गया as per the law of supply. There is movement along the curve. That is, we move up the given supply curve. उस ही supply curve पे आप ऊपर जा रहे हो. Now when the price of commodity falls to OP0, directly OP0 हो गया है, then its quantity decreases to OQ0. We move below, downward on the same supply curve. Thus, movement upward or downward along the given supply curve occurs when price of the commodity alone changes. तो movement in the supply curve कब आ रहा है? Movement आ रहा है only due to price change, और किसी भी reason के वजह से नहीं, सिर्फ price change के वजह से आपका movement along the supply curve आ रहा है. अब आते हैं shift in the supply curve कब होता है? When factors other than price of the commodity such as price of inputs, production technology, price of related goods changes, they cause a shift in the supply curve. जब दूसरे चीजें जो other factors remaining constant हम लेते हैं, जब वो other factors में change आता है तब there is a shift in the supply curve. For example, when price of inputs such as labor or price of, let's say in general price of input, लेबर का प्राइस या फ्यूल का प्राइस या कुछ भी और, वो अगर राइज, वो बढ़ चुका, यानी कॉस्ट बढ़ जाएगा. दे रेज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट बढ़ जाएगा. अगर कॉस्ट बढ़ गया, इस वजह से क्या होगा, सेम प्राइस पे ये का सॉरी दिस इज द सप्लाई कर्व. सेम प्राइस में चेंज आया है नहीं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया है. अब सेम प्राइस पे आप कम क्वांटिटी सेल कर पाओगे क्योंकि कॉस्ट बढ़ चुका है. तो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, bring about shift in the whole supply curve to the left. I'll again explain. See,
दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ठीक है। एस एस, ये प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल हो रही है। अब क्या होता है, प्राइस ऑफ इनपुट हैज इंक्रीज्ड, इसके वजह से क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा आपका। प्राइस में चेंज आया है, इस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया है नहीं, इनपुट प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसके वजह से क्या होगा, आप अब सेम प्राइस पे कम क्वांटिटी सेल कर पाओगे, क्योंकि कॉस्ट बढ़ चुका है, यूनिट कॉस्ट बढ़ चुका है, तो आप कम क्वांटिटी सेल करेंगे। इस वजह से आपका सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वही अगर प्राइस ऑफ इनपुट डिक्रीज होता है, मतलब यूनिट कॉस्ट कम हो गया, अब आप ज्यादा बना पाते हो, राइट। तो इस प्राइस सेम है, अब आप ज्यादा क्वांटिटी बना के सेल कर पाओगे, यानी देयर वुड बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। So this is how change in the price of input changes the cost and accordingly shifts the supply curve. On the other hand, when there is improvement in technology, अब अगर इसी रीजन, ये तो हो गया कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से, अब आते हैं टेक्नोलॉजी। दिस इज योर सप्लाई कर्व ओरिजिनल। अब अगर इम्प्रूवमेंट आ गया है टेक्नोलॉजी में, इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी मतलब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब आप कम टाइम में ज्यादा क्वांटिटी बना पा रहे हो। हायर द क्वांटिटी, क्या प्राइस कमोडिटी का चेंज हुआ है? नहीं, प्राइस सेम है। अब आप सेम, आपने टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की है, तो इस वजह से ज्यादा क्वांटिटी कम टाइम में बना पा रहे हो, तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। दिस विल कॉज राइटवर्ड शिफ्ट। अगर आपका वहीं पे टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में रिडक्शन हो गया, दिस इज एल, यानी आप आउटडेटेड पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, इस वजह से आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा। क्वांटिटी कम हो गया, देयर वुड बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। So on the other hand, when there is improvement in the technology in production of good, it will raise the productivity of factors. टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट जब आप करोगे तो वही लेबर, समझो पहले सिर्फ एक मशीन था, ठीक है, वो एक मशीन जो था वो 5 लेबर है, वो मिल के एक मशीन यूज करके सिर्फ 20 यूनिट्स बना पा रहे थे। अब आपने 2 और मशीन्स ऐड कर ली है टेक्नोलॉजी, और ऐसी मशीन्स ऐड की है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है इससे, तो अभी वो जो 2 है यानी ज़्यादा आउटपुट दे रही है, तो अब ये 5 लोगों का प्रोडक्टिविटी, एक दिन में जो वो 20 बना पा रहे थे, अब एक दिन में 100 यूनिट्स बना पाएंगे, तो इनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। एंड रिड्यूस द यूनिट, और यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर देगा ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी एंड कॉजेज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व टू द राइट, तो वो हमने देखा है। When there is a rightward shift in the supply curve, more quantity of the good will be supplied at the same price. Same price पे more quantity is supplied. As stated above, the supply of the commodity in economics means the entire supply schedule or the curve depicting the relationship between price and quantity supplied of the commodity. Other factors influencing supply remaining constant. जब आप सप्लाई की बात कर रहे हैं तो सप्लाई यानी पूरा का पूरा शेड्यूल या पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होगा। तो जब हम टेक्नोलॉजी या प्राइस ऑफ इनपुट में चेंज लाते हैं तो पूरा का पूरा सप्लाई चेंज होता है, ना कि क्वांटिटी सप्लाई। These other factors are state of technology, price of input, price of other related commodity, etc.
which are assumed constant when the relationship between price and quantity supplied of the commodity is explained. तो ये अदर फैक्टर्स कौन से थे? ये अदर फैक्टर्स थे प्राइस ऑफ इनपुट, टेक्नोलॉजी, जो कि अगर चेंज हुए तो पूरा का पूरा सप्लाई चेंज होगा. इट इज द चेंज इन दीज फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी ये सारे फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ये लाते हैं शिफ्ट सप्लाई कर्व में. When the price of inputs such as labor and raw material used for production decline, resulting lowering the cost of production, profitable for producer, more is produced at available greater quantity of commodity in market at each price. तो ज़्यादा quantity supply होगी. Fall in the price of input or improvement in technology causes increase in supply. This increase in supply of the commodity due to reduction in price of input will cause entire supply curve to shift to right as shown in the figure. ये हमने देख लिया है. As shown by arrow marks at price P1, P2, P3 quantity. अब आप पूछोगे कि मैम यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है? जी नहीं, प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, सप्लाई वही है. अगर प्राइस P1 होता तो ये क्वांटिटी पहले होती, लेकिन अभी न्यू क्वांटिटी ये होता. प्राइस अगर P2 होता तो क्वांटिटी पुरानी इतनी थी, अब न्यू क्वांटिटी इतनी है. प्राइस अगर P3 होता तो ओरिजिनल क्वांटिटी ये होती, अब न्यू क्वांटिटी इतनी है. तो ये आपका नया सप्लाई कर्व है. Similarly, progress in technology used for the production of commodity will increase productivity and reduce production cost per unit, which will also cause the supply curve to shift to the right. On the other hand, when prices of the inputs, ये भी हमने देख लिया है, जब input prices rise होते हैं, they lead to increase in the unit cost of production, induce the firm to produce and supply more of good at each price and therefore cause the supply curve to shift to the left. तो इस वजह से leftward shift होगा. In case supply of the good is set to decrease, तो quantity supplied कितना हो जाता है? Decrease होता है. Rather, to be very specific, पूरा का पूरा supply decrease हो जाता है. Similarly, the imposition of excise duty or sales tax on commodity. अगर सेल्स टैक्स या कमोडिटी पे एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, मतलब ईच क्वांटिटी जो है वो अब हायर प्राइस पे सेल होगी. Will now be supplied at a higher price than before so as to cover the excise duty or sales tax per unit, ताकि हम एज अ प्रोड्यूसर जो मुझे टैक्स भरना है एज अ सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, मैं वो कंज्यूमर से ले सकूँ. तो प्राइस इंक्रीज होना चाहिए. This implies quantity supplied of the commodity at each price will decline, causing a shift to the supply curve to the left. अब प्राइस में शिफ्ट नहीं कर सकती हायर, तो इस वजह से मुझे क्या चाहिए? सप्लाई कर्व. सप्लाई में कम कर दूंगी, सप्लाई कम करूंगी तो जितना प्रोडक्शन कम हुआ है, कम क्वांटिटी सप्लाई करूंगी एट द सेम प्राइस, मतलब रिलेटिव टू बिफोर अब हायर प्राइस मिल रहा है कम क्वांटिटी के लिए, तो मैं एक्साइज ड्यूटी भर पाऊंगी. तो पूरा का पूरा सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. फर्दर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया इज India greatly depends on rainfall due to monsoon. Correct? If monsoon comes in time and rainfall is adequate, there is bumper crops. तो जब इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो रेनफॉल पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो अगर मॉनसून में अच्छा मतलब रेनफॉल हुआ तो फिर आपका क्रॉप्स जो है बहुत सारा होगा, तो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा. अगर मॉनसून खराब है, इनएडिक्वेट है, देन क्रॉप्स जो हैं वो कम होंगे. कम क्रॉप्स यानी लेफ्टवर्ड सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा यानी लेफ्ट शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व में. We explain below in some detail several factors other than price which determine the supply of commodity, and any change in other factors will call shift in the entire supply curve. तो नीचे हम इन डिटेल देखेंगे फैक्टर्स दूसरे कौन से हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.
Till then, you keep watching the journey of understanding economics. If you want any class from me relating to any topic of economics or any paper of economics, आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड whichever topic you want. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. And yes, don't forget to like the video, comment if you have any feedback or any doubts, share this video with your classmates and do subscribe to the channel if you are new to the channel. मैं international economics, econometrics, microeconomics से related वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.